What's up, HSC, SYJC, Maharashtra board people? A lot of you must have been ICSE kids in grade 10 or IGCSE kids in grade 10 and are now trying to cope with the HSC board, which might be a bit difficult for you, no matter how great you were in English in grade 10, because HSC, the entire culture is a bit different from how ICSE, IGCSE, or maybe even CBSE used to be. So, this video is primarily to help you understand how to maneuver through your board exams. And I hope it helps you all. I normally end up taking a crash course of 5 days with my kids, but this year onwards, I have stopped taking the crash course because I'm not finding the time to do so. So this video is me sharing all possible resources with you guys. If you're watching this video and if someone's forwarded it to you, then you need to go back to my Insta page because in the profile you will find a link which has all the resources that you would need, which would include a presentation that I've made for my HSC kids and a compilation of all valuable resources that you need before you approach your exams. Now, ideally for English HSC board, you just need 5 days of prep. Only 5 days, nothing before that, nothing after that, but 5 days of study time to chahiye. Okay, now before that, let's understand how HSC board works. English ki baat kar raha hu. You have to unlearn everything that you've done in ICSE or in your grade 10. Let's not get into the boards again, but everything you did in grade 10, you need to forget about it. All right. HSC is a new game. You need new rules and you need to abide by these rules. And rule number one, no matter how ridiculous it sounds, is neatness. You have to be absolutely neat. So any kid over here who's laughing it off and taking pride in the fact that haha, मेरा handwriting तो इतना awesome है, मैं doctor बन जाऊंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, all of those jokes are not going to go well with the HSC board people who are grading your papers, because the difference in grade 10 and grade 12 is in grade 10 they are scanning your papers and looking for the correct answers, and in grade 12 they are scanning your papers and looking for mistakes. मिस्टेक्स ढूंढना इजी होता है, वो उभर के आता है. जहां एक कैंसिलेशन लिखा हुआ 1 मार्क जाएगा, जहां ओवर राइटिंग है वहां 1 और मार्क जाएगा, जहां स्क्रिबल किया है वहां पे 1 और मार्क जाएगा. एंड द ग्रेडिंग इन द होल पेपर इज 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस. तो ये 3 मार्क्स यहीं पे उड़ गए जस्ट बिकॉज यू वर टू nonchalant about the whole thing. Now, if you don't care about your scores, don't bother. But if you do care about getting like at least an 80 out of 100 जो easily मिल सकता है 5 दिन के अंदर, all you have to do is sober up and just try to make sure that you're following these instructions. Now, how to avoid mistakes? You basically think first, write later. You have 3 hours and the paper is not that lengthy. The paper is, it's all objectives, all right? Except for the novel part where you'll actually have to write longer answers. But apart from that, it's just objectives. So you basically just need to have your wits about you, take deep breaths, think the answer through, and then start writing. Now, once you start writing, no scribbling. Now, even if you make a mistake, try to ignore it and move ahead. Like, hope that the examiner will not locate those mistakes. Again, I know I'm sounding ridiculous, but that's exactly how you're going to end up scoring. So focus on neatness. All right. Now, understand the battleground first. What is your paper pattern like? You basically have an extract that will come, which is supposedly from a scene textbook. Now, this scene story in your textbook, you're not supposed to read only. So don't bother reading the textbook. That's pointless. The textbooks are useless. Don't read it. All right. This passage will have all the answers that you require. So it's think of it as an unseen comprehension that you used to write back in 10th grade, right? So when you go through this entire passage, it's going to be very simple. You just have to read through it and every answer is going to be in that passage. So it doesn't really matter whether you've read the story before or not. Of course, if you've read the story before, it gives you an edge over other people, but you don't have to learn question answers. You don't have to get into each and every line, understand each and every line. Doesn't matter. All you need is direct understanding of what the comprehension is about. All right. And the answers are ready-made, tailor-made answers. All right. You will also see 3 questions which are not direct. One question will be a personal opinion question, which is great. You're going to get full marks in that because each opinion is accepted, and one will be a vocab based question and one will be a grammar question. Now, grammar question fortunately will have MCQs, and the vocab based questions are basic lallu questions. All right. Now, why is all of this so easy? And when you see the paper, you'll spend 10 minutes just laughing at the paper because that's how easy it's going to be. But that's because in grade 10 they are testing your English.
But in grade 12, they are only testing if you have the ability to read English, right? Because in grade 12, what happens is a lot of kids who are initially all their lives, they were in Gujarati medium or Hindi medium or Urdu medium or whatever other Marathi medium, they are all in the same college, they are all in the same pool now. So the paper difficulty level is very easy. It's something that everybody can understand. So the whole objective of 12th English is that it's just an additional subject. लाइक आईसीएसई में एक SUPW करके हुआ करता था जिसमें जस्ट ग्रेड मिल जाता है ऐसे ही, ये वो वाला पेपर है जिसमें सिर्फ थोड़े इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं एंड यू हैव रेडीमेड स्कोर्स, राइट? सो ए तेरा पहला जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो देख के आने वाले हैं तेरे को, उसके एंड में तेरे को एक माइंड मैपिंग या समरी, हाँ नहीं उसके बाद तेरे को एक और passage आएगा. That passage is gonna be an unseen comprehension. Now that unseen comprehension भी unseen ही है, पहला वाला comprehension भी unseen ही है. ये दोनों जो questions है उसमें कहीं ना कहीं तेरे को एक mind mapping का question आएगा और एक summary writing का question आएगा. Right now summary is nothing like Prezi. So you have to forget Prezi writing. You don't have to make a grid and everything. You don't have to bother writing in 50 words. It's basically जो unseen वाला जो technically unseen वाला passage है ना, you just have to summarize it. Now how to do that is also very simple. All you have to do is read the question correctly. They will definitely give you the pointers that they want you to use. So they'll be like, summarize an entire passage, make sure you're using these points. So use those points, बीच में 2-3 fillers डाल दे and देख ले कि 10 to 15 lines में तेरा पूरा summary खत्म हो जाए. Title is a must. So एक title लिख और वो जो पूरा पैसेज है उसको शॉर्टन करके देखो, शॉर्ट एंड उसको भी शॉर्टन करना इजी है बिकॉज यू आर यूजिंग द पॉइंटर्स. उसके बीच में देखो 2-3 फिलर्स डालने हैं, सिर्फ वो फिलर्स डाल दें एंड योर समरी इज ओवर. Trust me, and again I'm telling you I sound very unconventional but this is going to help you score. All right, make sure that you're putting a box around it, neatness, aesthetics. All right, and make sure you're writing the title, make sure you're leaving a line after the title and then starting. There are no paragraphs in this, so 10 lines 15 lines में तू पूरा अपना summary खत्म कर सकता है. Begin the new question on a new site. So इसके बाद जो mind mapping आता है ना, mind mapping भी बहुत basics है. They are not testing your GK over here, so they'll be like make a mind map of a study plan for a subject of your choice. That's how the questions are designed. All right, now basically everyone's going to make a different mind map, right? So mind map is nothing but a tree diagram. तो ऊपर एक key idea आएगा, the key idea will be study plan for math. उसके नीचे तू उसको ब्रांच आउट करेगा, उसके नीचे तू उसको ब्रांच आउट करेगा, उसके नीचे तू उसको ब्रांच आउट करेगा. सो बेसिकली 1 कीवर्ड देन 2 ब्रांचेस देन 3 सब ब्रांचेस, दैट्स मोर देन इनफ. ऑलराइट, और वो तेरे मन से तेरे को लिखना है, वो फैक्चुअली करेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है? तेरे को जो मन में आता है तू लिख सकता है. जस्ट मेक श्योर दैट अगेन if you have put something in a box, then make sure that the other things are also in a box. Do not clutter it. It should be well spaced out, and again make a big box around the whole thing so aesthetics, it looks good. All right, so that's how you do the mind mapping wala question. Again, the title in a mind mapping is your key wala jo main jo word hai tera, that is the title. Okay, so mind mapping doesn't separately need another title. उसके बाद तेरा poetry section आएगा after the 2 extracts that you are done with. Now poetry is also very simple, straightforward होगा. एक poem देखो आएगा. Now total there are 8 poems. Alright, now ये 8 poems जो है that basically I have given you poetry appreciation for these 8 poems. ये poetry appreciation of all 8 poems को रट्टा मार के जाना, ठीक है? इसमें और कोई चॉइस नहीं है. छोटा सा आधा पेज, एक पेज का एक साइड का होता है, वो उसको रट्टा मार ले. And I've also put up a copy of my notes on the profile link. When you go through the notes, you'll see that I've given you the paraphrase of each poem. You don't have to try and understand the poem at all, but read the paraphrase so at least you know what the poem is about. All right, once you know what the poem is about and you see a question, you'll know okay ये Inchcape Rock का question है, या ये सरोजी नायडू वाले poem का question है. So whatever it is, you'll be able to understand and recollect what you had read from the notes. Don't have to memorize anything, you just have to read it once. All right, now when you read it once, and when the poetry appreciation will be from another poem. So एक RTC आएगा एक XYZ poem का, एंड फिर तेरे को एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा, राइट अ पोएट्री अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोम. अब ये पोम दूसरा वाला पोम होगा. अब तू 8 के 8 पोम्स पढ़ के गया तो 8, तो तू 5 दिन के अंदर 8 आंसर्स तो लर्न कर ही सकता है. वो 8 आंसर्स में से तेरे को कोई भी एक छाप के आना है. सो दैट बिकम्स अ पोएट्री अप्रिसिएशन. पोएट्री में 2 और क्वेश्चन आते हैं जो लोगों को थोड़ा टेंशन आता है. वन इज कंपोज योर ओन पोम. वो कुछ भी नहीं है, जस्ट राइट व्हाटएवर वर्ड्स कम टू योर माइंड. इट डजंट हैव टू बी राइमिंग, इट डजंट हैव टू बी एनीथिंग. इट्स जस्ट योर थॉट्स दैट यू आर पुटिंग आउट इन 3 लाइंस. So एक वो क्वेश्चन होता है और एक होता है अगेन आई थिंक देयर इज vocab based questions in the poem section also. So वो इजी है करना. वो बेसिकली अगेन मेरे नोट्स के अंदर भी है. एंड युवक भारती डाइजेस्ट अगर तू बाय करता है एट दिस पॉइंट नवनीत का, तो उसमें से इन प्रोज एंड पोइट्री
A4, A5 एंड A5, A6, मतलब कोई भी आरटीसी होता है तो उसमें A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसा आएगा, राइट? सो प्रोज एंड पोइट्री में तू जस्ट लोकेट कर ले जो vocab based question है, it's gonna be somewhere around A4 and A5 or A5 and A6 depending on whether you're reading prose or poetry. Just make sure that you're reading through all of these from Navneet. Reading helps. अगर तूने एक बार भी उसको read कर लिया, it's going to basically help you. ठीक है? So poetry is also easy. Figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच भी बहुत इजी है यार, उसके लिए भी मैंने तेरे को नोट्स में दिए हुए हैं, तो नोट्स के अंदर मैं एवरी लाइन के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच आता है ना, हर लाइन के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मैंने डाल दिया उसके अंदर, तो तेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा. यू जस्ट टू कंपेयर द लाइंस एंड यू विल बी एबल टू लोकेट. एंड इफ यू हैव डन ग्रेड 10 थोड़ा शिद्दत से, देन फिगर ऑफ स्पीच आर चिंदी इन दीज, ऑलराइट? सो you'll easily be able to locate what figure of speech is, and it's very straightforward. They ask you the most straightforward answers, all right? After poetry section you have writing skills. Now writing skills is where options start coming, and it's beautiful, all right? So I'm just going to refer to this presentation because I'm very fluent with my ICSE, but HSC में वो बार-बार देखना पड़ता है कभी-कभी. So summary writing compulsory था, mind mapping compulsory था. देख ऐसा एक presentation तेरे को दिखाई देगा जिसको मैंने PDF में convert किया है, तेरे को मेरे link पे दिख जाएगा, तो उसमें सब कुछ summarize करके आप given. Wait, let me put my phone also on silent, sorry. Okay, so after you're done with the two compulsory questions, your writing skills start. या जो first combination जो आएगा writing skills में is going to be drafting a message versus statement of purpose versus group discussion. All right, this is going to be a first combo. Now what do I mean by combo? Basically ये तीन questions आएंगे, देखो उसमें से कोई भी एक करना है, ठीक है? Go for drafting a message. The simplest writing skill ever. Think of it this way. You were having a shower, so your phone rings, your mom answers your phone, your friend is giving a message for you to your mom, but your mom has to go somewhere else, so she takes down the message on a post-it and leaves it behind for you. So it'll be as simple as Rahul, that's you, comma, Kshitij called to say that he will not be coming home today. Mom. So mom is the one who took down the message from Kshitij and left a message for Rahul. What else is required? Common sense की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. Day and time important है. तो the mom took down the message on, let's say, January 14, comma, and timing is important. So 8 a.m. That's it. कोई फॉर्मेट नहीं है. So you can write January 14, you can write 14th January, you can write 14/1/2026. टाइमिंग में भी कोलन आएगा नहीं आएगा, A.M होना चाहिए, AM होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ मैटर नहीं करता HSC में. कॉमन सेंस देखो यूज करना है कि एक इंसान तेरे लिए मैसेज ले रहा है, ऑलराइट? इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चंस में ना आइडेंटिटीज आर गिवन टू यू. थिंक ऑफ इट लाइक अ स्पाइस असाइनमेंट. लाइक दे विल बी लाइक यू आर कुमार सानू and Anu Malik has left a message for you which Udit Narayan took down. So basically now कुमार सानू के लिए मैसेज है, उदित नारायण ने मैसेज लिखा है, बट मैसेज आया अनु मलिक के साइड से. सो अभी मैं सारे नाम भूल गया, बट तू समझ गया ना. सो बेसिकली इसमें यू विल राइट द नेम्स विच आर गिवन टू यू, आइडेंटिटी विच इज गिवन टू यू. ऑलराइट, अगर आइडेंटिटी नहीं दिया है सपोज HSC में, then all you have to write is XYZ. You cannot write your own name in the whole paper. Okay. Now by own name I mean कि अगर तेरा नाम अभिनीत है तो तू परिन लिख के मत आ जाना और ये मत बोला सर मैंने खुद का नाम नहीं लिखा, मैंने किसी और का नाम लिखा है. That's not what I'm saying. You have to write ABC or XYZ. That's all. Unless an identity is given by someone. Alright. So that's how a drafting message works. 4 marks का assignment है. Hardly 5 लाइन्स में खत्म होता है ये. 5 लाइन में तेरे पॉकेट में 4 मार्क तेरे को मिल सकता है अगर तूने कॉमन सेंस एंड दिमाग सही से यूज किया तो. उसके बाद जो दूसरा असाइनमेंट है विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो लंबा होता है, वो करना ही नहीं चाहिए. अब क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें घुस मत, बिकॉज मैं 5 दिन का मैटर तेरे को एक वीडियो के अंदर बोलने की ट्राई कर रहा हूं, उसमें मत घुस. द नेक्स्ट थिंग इज ग्रुप डिस्कशन, जो तेरा बैकअप होना चाहिए, विच इज ऑल्सो वेरी इजी. बेसिकली देयर विल बी अ मीडिएटर हु विल गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक ऑन. एज अ पेपर के अंदर लिखा रहेगा कि देयर इज अ मीडिएटर हु इज गिविंग यू अ टॉपिक टू डिस्कस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट. और फिर तू बोलेगा रमेश, गणेश, परेश आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. रमेश बोलता है हेलो गाइस, वी आर हियर टुडे टू डिस्कस वेस्ट मैनेजमेंट. रमेश कोलन, हेलो गाइस, वी आर हियर टू डिस्कस वेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट आइडियाज डू यू गाइस हैव? परेश, आई थिंक वी शुड सेपरेट वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट एंड सो इट बिकम्स इजियर फॉर एवरीवन. ऐसे वैसे करके तेरे को एक पूरा साइड कंप्लीट करना है. सो ईच कैरेक्टर शुड गेट मिनिमम 2 डायलॉग्स एंड यू हैव टू राइट इट.
अगेन टास्क बहुत इजी है बट लिखना ज्यादा है. नाउ द मोर यू राइट द मोर यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू मिस्टेक्स, सो ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, तो ये हो गया तेरा ग्रुप डिस्कशन. तीनों के बीच में तू जाएगा विद ड्राफ्टिंग अ मैसेज. तेरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आता है राइटिंग स्किल्स में, जो नेक्स्ट 4 मार्क तेरे को मिलेगा, इज गोइंग टू बी ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू. ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू. अब आई एम बायस्ड ऑनेस्टली टुवर्ड्स इंटरव्यू ओवर हियर बिकॉज रेडीमेड होता है यहाँ पे. ईमेल भी बहुत इजी है, तेरे को टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, डियर लिखना है. कोई फॉर्मेट नहीं है. ये आईसीएसई वाला ईमेल नहीं है जहां पे 10 चौंचले होते हैं, 10 डिवीजन के 10 टीचर्स छोटी छोटी टेक्निकलिटीज निकालते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक ईमेल आईडी होगा टू, एक होगा फ्रॉम, एक होगा सब्जेक्ट, फिर होगा डियर सर या जो भी है. इनफॉर्मल है तो डियर फ्रेंड, डियर राहुल, एंड देन यू आर राइट 3 पैराग्राफ्स एंड देन यू आर राइट योर्स ट्रूली सिंसियरली. कुछ मैटर नहीं करता है XYZ. ये तेरा ईमेल है, एक साइड में जाएगा. अगेन यू आर राइटिंग अ लॉट. बट एंड देन बीच वाला क्या था, रिपोर्ट करना नहीं चाहिए. अभी अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू इट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी अफेयर राइट नाउ. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, डोंट ट्राई टू लर्न इट, डोंट गेट इनटू इट. मूव ऑन टू द इंटरव्यू. इंटरव्यू इज रेडी मेड. दे विल गिव यू द एंटायर इंटरव्यू. ऐसा हाथ में परोस के देंगे तेरे को, बोलेंगे you are your college magazine's editor and you are interviewing a famous musician who has come down for your college fest. Write an interview question set of 8 questions to 10 questions and these could be the questions you can ask him. Now they will give you parameters. तो वो लोग देंगे childhood, first assignment, message for the youth. अभी ये पैरामीटर्स होंगे. नाउ दीज आर कीवर्ड्स जिसके अराउंड टू 8 क्वेश्चंस फॉर्म करेगा. 8 बेसिक क्वेश्चंस तेरे को फॉर्म करना है. नाउ व्हेन यू गो थ्रू माय नोट्स तेरे को बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा देंगे. व्हेन यू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स तेरे दिमाग में एटलीस्ट यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि कोई भी टॉपिक हो एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस कॉमन है. लाइक व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द यंग पीपल, वाज इट डिफिकल्ट टू गेट योर फर्स्ट ब्रेक, was your childhood very difficult or were people very supportive of your career choices. ऐसे वाले बहुत सारे सिंपल वाले. Don't ask name and everything. What is your name? अभी तू एक famous musician को इंटरव्यू कर रहा हो तो बोले what is your name? That shows तेरा common sense level कहाँ चल रहा है. Then you don't deserve to get marks. तो उसको छोड़ देना. But अगर तू कोई orphanage में है या तू कोई old age home का इंटरव्यू ले रहा है and you are talking to one of the inmates, then obviously then you have to like basically वो inmate का तेरे को लेना ही पड़ेगा कि हाँ भाई what is your name. वो basic question हो जाता है. ठीक है. इंटरव्यू I honestly feel interview is amazing, but if you go blank in an interview, then email is what you need to fall back on. Report writing skip कर. उसके बाद वाला जो आता है तेरे पास जो combo है is speech and comparing and expansion. Go with expansion. Expansion बहुत basic सा चीज है. तेरे को एक proverb देंगे या कोई एक saying देंगे, stitch in time saves 9. And you have to write like 10 lines about it. 10 lines basically 10 words on a line, 100 words. 100 words to 150 words. 10 to 15 lines तू लिख सकता है. वो लोग ने तेरे को fillers दी, like key points दिए होंगे कि you can make use of the following points. कोई भी एक क्रिएटिव आइडिया देंगे, प्रॉवर्ब देंगे, तेरे को उसको एक्सपैंड करना है. यू हैव टू राइट सम, गिव ज्ञान पेलना है तेरे को बैठ के. तू इजीली कर सकता है ये चीज. और मान लेते को प्रॉवर्ब का मतलब नहीं समझ में आ रहा फॉर व्हाटएवर रीजन, तेरी इंग्लिश भद्दी है, तो स्पीच के लिए जा. स्पीच बहुत सॉलिड फॉर्मूला है, कोई फॉर्मेट नहीं है. टाइटल दे स्पीच का and then greet people. तो greeting में तेरे 2 lines कवर हो जाएंगे. Good morning everybody, respected judges, my dear friends, respected teachers, we are all here on the event of so and so day and I am here to speak on. इसमें तेरे 2 lines निकल गए. फिर what are you there to speak on? जो भी है तू उस पे 3 lines ऐड कर ले. We are here to speak on the occasion of Makar Sankranti, this that we should fly kites but responsibly, make sure that you're not injuring birds or other people and make sure you're safe on the terraces and you don't fall off and many deaths happen because of carelessness. इतना लिख दे. उसके बाद 2-3 rhetorics डाल. Rhetoric basically तू questions पूछ रहा है कि don't you think we need to be more responsible, don't you think civic sense is the need of the hour. अभी obviously ये political speeches का एक simple सा trick होता है जहाँ तुम questions पूछो सामने वाले को. कोई भी speech में देखो rhetorics दिखेगा तो 2 लाइन तेरे उसमें निकल गए और 3 लाइन में तू कंक्लूड कर कि थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड लेंडिंग मी योर इयर्स एंड आई होप टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ चेंज. यहाँ पे तेरा स्पीच खत्म हो गया. तूने लिखा हार्डली कुछ भी इसमें, बाकी का टेम्पलेट रेडी है तेरा. तो स्पीच इजी है, एक्सपेंशन उससे ज्यादा इजी है और बीच वाली चीज करनी नहीं है तेरे को, जो भी हो कंपेयरिंग है आई थिंक. उसके बाद तेरा लास्ट बचता है रिव्यू आएगा, ब्लॉग आएगा एंड पोस्टर आएगा. अपील बोलते हैं उसको. ठीक है. माय फेवरेट इज अपील बिकॉज उसमें लिखना कुछ भी नहीं है, एक पोस्टर बनाना है, कुछ भी एक बस एक बॉर्डर बना, उसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है. तू आड़ा लिख, टेढ़ा लिख, लंबा लिख, बड़ा लिख, कुछ भी कर सकता है तू. ठीक है. क्रिएटिविटी को फ्लो होने दे, बना ले, उसमें तेरा बेस्ट है. बेसिकली मेक अ लीफलेट अबाउट ब्लड डोनेशन. डोनेट ब्लड, ये बड़े हैंडराइटिंग में लिख दिया तूने. एंड देन यू आर लाइक सेव लाइव्स एंड वहां पे एक लिख दिया एंड एक बूंद सबको बचा सकती है.
kidding, don't try and avoid putting Hindi words, but अगर जय जवान जय किसान, not in blood donation, but ऐसा अगर तूने डाला किसान उसके लिए, that's allowed. महाराष्ट्र बोर्ड है, कभी कभी they promote, they are okay with that, तो तू लिख सकता है. Don't push your luck, हो सके तो अवॉइड कर, बट अगर करना पड़े और तेरे पास एक मस्त स्लोगन है जो तेरे को लग रहा है इससे टीचर एकदम इंप्रेस हो जाएगा, आंसू निकलेगा उनके आंख में से, तो डाल दे वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो भी है, मतलब वो करेक्ट वाले लिख के ना, रॉन्ग कुछ मत लिखे ना, पोपट हो जाएगा तेरा. ठीक है, अगर तेरे को लग रहा है कि सर मेरे को ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स मेक मिस्टेक्स जहां, बिकॉज मैं बोलता हूँ रूल्स नहीं है इसमें, वो लोग का फ्लो कुछ भी होता है पोस्टर के अंदर, देन आई डोंट नो व्हाट द मेन मैसेज इज, तो वहां पे सबसे बड़ी गलती होती है, और इट्स टू क्लटर्ड. उसके जगह पे तू रिव्यू लिख के, अब रिव्यू भी तेरे को एक ही रिव्यू रट्टा मार के जाना है, कोई भी एक रिव्यू नोट्स में से पढ़ ले, कोई भी, चाहे तूने टाइटैनिक का पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, तूने कौन था वो छावा का पढ़ लिया, तूने जो भी पढ़ लिया, कोई भी एक रिव्यू पढ़ ले, और वो लोग तेरे को बोलेंगे राइट अ मूवी रिव्यू ऑन हाइस्ट और रीसेंट हिस्टोरिक मूवी दैट यू वॉच. तूने जो भी मूवी का रिव्यू पढ़ा उसके कैरेक्टर्स को 2-3 चेंज कर. इट्स नॉट अ जीके बेस्ड थिंग, वो कोई रियल मूवी नहीं है, वो टीचर जाके फैक्ट चेक नहीं करने वाला कि यार टाइटैनिक में शिवाजी महाराज थे कि नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तू लिखना. वो लोग तेरा रिव्यू स्किल्स देख रहे हैं, ये देखो लिखने आता है कि नहीं आता है, लाइक कैन यू एक्चुअली राइट अ रिव्यू और नॉट. At this point, I want to tell you that I was just envisioning that any person who doesn't know me who's watching this video will at this point say कि ये हाई ओके लिख रहा है, ये आदमी ना ऐसा बेवड़ा आदमी है, कुछ भी बोल रहा है. भाई तेरे को मेरे बारे में जो समझना समझ, but I've been doing this for like 12 years. I think I've been teaching HSC kids for 12 years now, and every year my kids are in 90s. This is the only year में मैं अभी क्रैश कोर्स नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ. तो तुझे मेरे पे भरोसा करना जरूरी नहीं है, बट अगर तू टिप्स फॉलो करेगा तो तेरा फायदा होने वाला है. ठीक है, तो कोई भी एक रिव्यू रट्टा मार के जा एंड जस्ट चेंज द नेम्स अराउंड. कॉमन सेंस विल गेट यू वे अहेड देन जस्ट ब्लाइंड लर्निंग बाय रोट और जस्ट अटेंडिंग लेक्चर्स और अटेंडिंग क्लासेस. कॉमन सेंस ये पेपर में बहुत जरूरी है, एंड हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन जरूरी है. ठीक है, तेरा राइटिंग स्किल्स खत्म होने के बाद तेरा नॉवल सेक्शन आता है. नॉवल सेक्शन जो है ना वो ट्रिकी है, इसमें आरटीसीज नहीं है. 4 नॉवेल्स है टोटल, वो 4 नॉवेल्स में से तेरे को 2-2 मार्क के, 4-4 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. तो जो फर्स्ट नॉवेल है ना, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. बेसिकली दैट्स नॉट अ नॉवेल, दैट्स जस्ट अ नॉलेज अबाउट हाउ नॉवेल्स आर. तो थिंक ऑफ इट एज अ क्विज कॉम्पिटिशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. देयर इज नो वे आउट बट टू लर्न दिस एंड गो, जिसका सारा मटेरियल मैंने अपने प्रोफाइल लिंक में डाला हुआ. लाइकवाइज फॉर ऑल नॉवेल्स मैंने कैरेक्टर स्केचेस, समरीज सब दिया है. हर रोल में से सारी चीजें बाय हार्ट नहीं करनी है. 4 कैरेक्टर्स है ना, तो कोई भी एक कैरेक्टर का पढ़ के जा, कोई भी एक कैरेक्टर. ठीक है, ओ शिट गाइस, आई हैव अ लेक्चर, मैं जाने वाला हूं, जल्दी बोल दे रहा हूं तुम लोगों को. कोई अभी सपोज कोई लाइक लेट्स से शर्लॉक वाले नॉवल में लेट्स से देयर इज वाटसन, देयर शर्लॉक, तो कोई भी एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच पढ़ ले एंड देन वही कैरेक्टर स्केच लिख के आ जा, सिर्फ नाम चेंज कर दे. बिलीव मी, वो लोग पढ़ने नहीं वाले. अगर तेरा हैंडराइटिंग अच्छा हो, तूने बहुत लंबा लिखा ना, तो इट डजंट मैटर. तो तू लिख रहा है सारे कैरेक्टर स्केचेस शर्लॉक के, बट उसमें तू वॉटसन का नाम डाल के लिख रहा है, बिकॉज देखो तूने वॉटसन का कैरेक्टर स्केच पढ़ा नहीं था, तू शर्लॉक का ही एक रट्टा मार के गया था. तो लिख दे शर्लॉक का, बट वॉटसन का नाम हर जगह शर्लॉक के जगह पे यू आर रिप्लेसिंग द नेम विद वॉटसन. डजंट मैटर, बिलीव मी. ओके, ये पूरा पेपर ना वो एनुअल डे कॉम्पिटिशन है, जहां तू डांस कर रहा है, डांस स्टेप्स भूल गया, पर अगर ऑडियंस को पता नहीं है ना, तू भूल गया एंड तू कॉन्फिडेंटली डांस किए जा रहा है, तो दे विल थिंक यही डांस था, ये ऐसा ही होने वाला है. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ योर एचएससी पेपर इज गोइंग टू बी. ऑलराइट, everything that I'm saying in this video, I think it's been 23 minutes that I've been speaking. 5 days का material मैं 23 minutes में squeeze in कर रहा हूँ. There are a lot of things that are missing in what I'm saying right now. There are a lot of reasoning behind what I'm teaching. मैं एकदम fast बोलने की try कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा फायदा हो. Go through the link, go through the resources, and I hope that you guys give me blessings when you guys score, because जब तक तुम पेपर लिखोगे नहीं ना, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट है कि नहीं है. ओ बाय द वे, व्हिच रिमाइंड्स मी, अगर तेरे को देखना ना मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है कि नहीं है, तो मेरे नोट्स के अंदर ना मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स डाले हुए तेरे लिए. ठीक है, तो वो सॉल्व पेपर्स है बाय द वे, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू देम. तो जब तू पेपर्स रीड कर रहा है ना, यू विल नोटिस कि यार कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं है, सब लोग कुछ भी फॉर्मेट लिख रहे हैं, व्हिच इज करेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट टेस्टिंग योर फॉर्मेट. दे आर, लाइक आई सेड, द होल पॉइंट ऑफ दिस पेपर इज कि तेरे को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तो पढ़ के कुछ भी डिलीवर कर पाएगा. HSC is like the IELTS exam that you have to give before going abroad, where तेरे को abroad जाके basic spoken English आती है कि नहीं. That is what they are trying to test over here. ठीक है, तो लोड कम ले, 5 दिन शिद्दत से पढ़ना क्या, वो मटेरियल मैंने तेरे को दिया हुआ है. पेपर पैटर्न देख, प्रेजेंटेशन का PDF देख, and hopefully everything will work out for you.
राइट, नो नीड टू रीड द स्टोरीज, नो नीड टू रीड द पोम्स, पोम्स का पैराफ्रेज पढ़ना जरूरी है। नॉवेल्स में कैरेक्टर स्केच, प्लॉट समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ नॉवेल, सिर्फ हर नॉवेल के इतने 3 चीजें पढ़ ली ना अगर तूने, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तू इन्हीं का मर्ज करके कुछ भी आंसर बना सकता है, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर नीट एंड you are writing lengthy answers in the novel, you'll get full marks over here, trust me. And cancellation zero रख, तेरा पेपर कितना भी ढासो क्यों ना, तेरी इंग्लिश कितनी भी फाड़ो क्यों ना, बट अगर कैंसिलेशन है तो तेरा मार्क जाएगा, फिर तो रो नहीं सकता है। आईसीएसई की तरह यहाँ पे रीचेकिंग का कोई बिजनेस नहीं है, दे डोंट केयर। तो तूने अगर मिस्टेक्स की तो भगवान भरोसे, फिर तू जाएगा तेरा पेपर, ठीक है। इसलिए टॉपर्स भी कम मार्क्स लाते हैं, एंड जो भद्दू से भद्दू होता है ना वो भी फुल मार्क्स लाता है एचएससी एग्जाम्स में, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश इज द लास्ट थिंग दैट्स गोइंग टू मैटर। व्हाट्स गोइंग टू मैटर इज दैट यू पुट योर हेड डाउन, बी एस्थेटिक, बी नीट एंड यूज योर कॉमन सेंस। जुगाड़ एंड कॉमन सेंस एचएससी में सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। रिसोर्सेज आर ऑन माय इंस्टा हैंडल, शेषव वाडिया के नाम से गया पूरा इंस्टा हैंडल, तो तुम लोग जस्ट जा सकते हो, लिंक में जाओ। आईसीएसई का मटेरियल होगा जो आईसीएसई बच्चों के लिए, पर वहां पे एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड का मटेरियल होगा जो तू क्लिक करके डाउनलोड करके यूज कर सकता है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय, जल्दी में होगा।